Good evening, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. No issue. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Again, समस्त question voice clear अच्छी. Thank you. Actually ଟିକେ health issues ପାଇଁ ମୁଁ medical ଯାଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ବାକି ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଥିଲା ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି. ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ଆଜି ମୁଁ କରିବି ଯୋଉଟା କି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍. ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ କଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ର ଟାଇମିଂ ରଖିଲି. କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ସେ ଫ୍ଲୋ କେବେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାନି. ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ସିଲାବସକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍କୁ. ଯୋଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି. ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଆମେ ନୋଟ୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବା, ଯୋଉଟା କି ବି ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିବ ଯେ ନୋଟ୍ କେମିତି ମେକିଂ କରିବା. ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି. ନୋଟ୍ କେମିତି ବନେଇବ ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ପ୍ରିଲିମ୍, ଫର୍ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ୍ ଏ ମେନ୍ କେମିତି ବନେଇବ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିବି. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯୋଉଟା କି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ନୋଟ୍ଟା, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ନୋଟ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବିଫୋର 1 month ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍. ଏକ୍ସାମ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ସେଇଟା କେଉଁଭଳି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ. ପୁରା ରେଡି ଅଛ? ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବା କ୍ଲାସ୍ କରିବା. ପ୍ରଥମ କଥା, ଯୋଉ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛେ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା. ତା ସହିତ ନୋଟ୍ କେମିତି ବନେଇବା, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ନୋଟ୍ କେମିତି ବନେଇବା. ଓକେ, चलो रेडी अछो? चलो अच्छा, समस्त को व्हाइट बोर्ड शो होउछ. समस्त वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबो पर लास्ट पर्यंत क्लास को एंजॉय करिवो कारण एते बहुत जिंस तुमको सिखिबार अछि. देख, जेतेबेले मु तुमको हिस्ट्री रो मॉडर्न हिस्ट्री पढेइली दुईटी टॉपिक पढेइली. गोटी होछि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आउ गोटे कोन थिला ना 1905 मसिया, 1906 मसिया, 1907 मसिया, 1909 मसिया. तो क्यों क्यों मसिया रे बा क्यों कोई ईयर रे कौन हेतिला से विषय रे मु डिस्कशन मध्ये कली. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇଏନସି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢେଇଥିଲି ତ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି. ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଶିଖିଲ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ତମକୁ ସେ 100% ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ହଉ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ 100% ନୋଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି କିଛି ନୋଟ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଟିଚର ବାର ବାର ପଚାରିଥାଏ. ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ. ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆଇଏନସି, ଆଇଏନସି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, କୁଇକ୍ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ. ଦେଖ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ନିଜେ ଫେଲୁଅର ଟାଇପର. ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ଏନିୱାନ୍. ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, କିଏ ସେ ନା ଏଓ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଇଏନସି. ଆଇଏନସି ର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? କାରଣ ଏଉଠୁ ତୁମେ ଶିଖିପାରିବ ଯେ କେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ନୋଟ୍ ବନେଇବ. ଓକେ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବାନାର୍ଜୀ. ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କେତେ ଜଣ ଡେଲିଗେଟର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ? ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଲିଗେଟର? 72 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ. ଓକେ, କେତେ ଜଣ ନା 72 ଜଣ ବା 72 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ. ଓକେ, थैंक यू. तो एठी गोटे जिंस पचारे अछि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईएनसी, जेतेबेले आईएनसी फॉर्मेशन हेतला इन दैट टाइम हु बिकेम द वाइस रॉय ऑफ इंडिया. से समय वाइस रॉय ऑफ इंडिया किए थे? लॉर्ड डफरिन. लॉर्ड डफरिन. ओके, थैंक यू. कहा कमे राष्ट्रगुरु बोली कहि दो, कहा कमे राष्ट्रगुरु बोली कहि दो किस? सुरेंद्रनाथ बानर्जी को आमे राष्ट्रगुरु बोली कहि दो. ओके, थैंक यू. अच्छा, ओएलबी कमिशन के बेस पिले, ओएलबी कमिशन के बेस थिला, ओएलबी कमिशन के बेस थिला. थैंक यू. 1895 1895 ख्रीष्टाब्द रे ओएलबी कमिशन आस्थिला. इंडियन काउंसिल एक्ट केते? इंडियन काउंसिल एक्ट केते? 1892 हैला. अच्छा, आउ कोन आस्थिला हमें सही समय डिस्कशन करथिले जेतबेले हमर आईएनसी तयारी छि. फर्स्ट सेशन जाइछि, सेकंड सेशन आसीछि. सेकंड सेशन रो प्रेसिडेंट के थिले? सेकंड सेशन आईएनसी रो सेकंड सेशन दादा भाई नारोजी थे. थैंक यू. अच्छा, तो महात्मा गांधी सर्वप्रथमे केबे आसीथिले जोड़ा कि आज पार्ट हिसाब रे पार्टिसिपेट करथिले आईएनसी मीटिंग रे? 1991 मसिया रे पार्टिसिपेट करथिले आईएनसी मीटिंग रे. अच्छा, फर्स्ट टाइम आईएनसी रो मीटिंग इन ए विलेज केबे विलेज रे हितला? फर्स्ट टाइम विलेज रे केबे हितला?
क्यों क्यों मसीहा 19 1937 रे 1937 ओके और 1937 अच्छा यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आईएनसी रो यंगेस्ट प्रेसिडेंट किए थे अब्दुल कलाम आजाद थैंक यू आईएनसी रो प्रथम लेडी प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी प्रथम लेडी प्रेसिडेंट आनी बेसेंट आईएनसी रो प्रथम इंडियन लेडी प्रेसिडेंट किए थे सरोजिनी नायडू आईएनसी रो प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट किए थे इंग्लिश जॉर्ज आईएनसी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थे बद्रुद्दीन ताइजी ओके थैंक यू तो ये थिला कहा विषय आम डिस्कसन करथिले ना आईएनसी विषय डिस्कसन करथिले मते कहबो एक्चुअली केउ सेशन रे सुभाष चंद्र बोस आज आईएनसी प्रेसिडेंट रे विनर हबा सत्ते भी किंतु से प्रेसिडेंसी हे नथिले को सेशन रे 19 केते 39 रे 1939 रे अच्छा हु बिकेम द लास्ट प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ आईएनसी आईएनसी रो माने शेष प्रेसिडेंट किए थिले बिफोर इंडिपेंडेंट रे जेबी किपल अच्छा एठी मोर क्वेश्चन टू एवरीवन एठी टू क्वेश्चन टू एवरीवन तमे समस्त जानि पाइलो जदि आईएनसी ऊपर केबे भी क्वेश्चन आसीबो यू ऑल आर रेडी क्वेश्चन को अटेंड करे भाई हो कि ना एबी क्वेश्चन आसुची जे सर आकु नै कि हम नोट बनेब कि नै देखो वर्तमान तुमको एथि भाई इजी लागुची मु पढौची जति कि दी गुणा रिवीजन करूची ऑल ओडिशा को ऑल इंडिया रे केही भी रिवीजन करांतनी रिवीजन गोटे जिनिस होची गोटे पिला को इंटरेस्ट लेवल बढ़ेबा गोटे पिलार रो टेक्निकली ताको आहुरी स्ट्रांग करबा होची कोन सेटा होची गोटे पॉइंट तल तुमे केमिति गोटे नोट बनेबो तुमे केमिति गोटे नोट बनेबो तर आईएनसी सेशन हां इंपोर्टेंट आईएनसी ऊपर क्वेश्चन ओपीएससी यूपीएससी बार बार पचारुची म तुम क्वेश्चन देबी देखि परिबो अच्छा आमे केमिति मन रखिबा देखो तुमे गोटे माइंड मैप गोटे तैयार करबो माइंड मैप नोट तैयार करबो केमिति बनेबो देखो एमती टेक्निकल सपोज मझिरे गोटे लिखल आईएनसी एमती रखिल फाउंडेशन केबे हेतला 1885 तापर लिखिल बाय किसे ना एओ क्यू फास्ट किए थे प्रेसिडेंट ना तुमर होची किसे ना डब्ल्यूबीसी बनर्जी बनर्जी अच्छा केबे हेइथिले एटा लिखिलो सेकंड केबे तो ये गोटे टेक्निकली तुम माइंड गोटे फिगर आसला तो आकु तुम शॉर्ट लिखिबो ग्रामाटिकली ऊपर फोकस करिवनी जे ग्रामाटिकली वर्ड आमे लिखिबा जे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इज एमती नहीं तुम खाली शॉर्टकट रे लिखिया गोची एमती तुमको गोटे माइंड मैप बने पड़ो आ ये माइंड मैप को तुम प्रति वीक बेसिस रे रिवीजन करियो किछि नहीं सीधा खाता देखियो तुम आखि आगे समस्त कॉन्सेप्ट एक नोट भीतर थिया दरकार माने देखो ये होची गोटे पेज ये 7-8 पेज रो मो गोटे पीडीएफ तुम मानकु देछि ओके जोटा कि एमिति देखो नोट बनेबो गोटिए पेज जेंति लिखा दरकार गोटिए पेज जेंति लिखा दरकार त ताकु ही कहबो माइंड मैप से माइंड मैप तुमको हेल्प करबो केते बेले ना देखो तुम टॉपिक जानिछो टॉपिक ऊपर भूली जाउछो एबे क्वेश्चन आसे केमति पढिबा त से माइंड मैप देखो एबे क्वेश्चन आसे जे सर ए नोट को कोन करिवो आकु तमर दुटा प्रोसेस अछि आइदर संपूर्ण लेख किंबा प्रिंट कर दियो दुटा प्रोसेस संपूर्ण लेख किंबा प्रिंट कर दियो संपूर्ण लेखिले तो मते नोट रहिला फिर भी तुम माइंड मैप नोट बनेबो किंबा प्रिंट कर देले मु जेमति अंडरलाइन सब करिछि इंपोर्टेंट पॉइंट को तुमे सब कोन करिवो अंडरलाइन को इंपोर्टेंट पॉइंट कलो तापर माइंड मैप टा कर देलो बुझा परिगला जे केमति क्वेश्चन रो गोटे नोट बनेबो एवरीवन रेडी हो कि ना का मन डाउट अछि कि और केबे भी मते पचारिबोनी जे सर हमें नोट केमति बनेबी यूज से पॉइंट जोटा कि तुमको देखे पढ़ा सहित केमती नोट बना जाए अच्छा जदि मु एबे तापर कहा विषय डिस्कशन करथि लॉर्ड कर्जन देखो तुमको एठी गोटे डायग्राम आकार रे तुमको मु सिखौछि केमती गोटे नोट बना जाए लॉर्ड कर्जन पढैथिला नै हेडिंग दलो लॉर्ड कर्जन हाँ पीडी देखो गोटे जिनिस होछि पीडीएफ रो भी रिवीजन करि परिबो जो तुम अंडरलाइनिंग करी पीडीएफ रू कर कि माइंड मैप टा तुम माइंड को आहुरी माने एक्सीलेंट कर दिए माइंड को दिमाग को आहुरी स्पीड रे निए से मु कहे माइंड मैप बनाओ माइंड मैप बनले तुम शॉर्टकट रो थ्योरी जानि परियो जे एक्चुअली एई जिनिस मो पे इंपोर्टेंट ओके लॉर्ड कर्जन अच्छा जेते बेले काली हम पढ़िले लॉर्ड कर्जन को विषय
तो प्रथम कथा लॉर्ड कर्जन केबेठू केबे पर्यंत भारत थे एनुअल आंसर 1800 1889 रु 1905 पर्यंत थे एठी गोटे लिखिबो हाँ से कौन थे यंगेस्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे ना नहीं यंगेस्ट वाइसरॉय ना नहीं यंगेस्ट वाइसरॉय थे फास्ट कथा तो आमे जानिछे इकोनॉमिकली तांकर मध्ये किछि चेंजेस हेतला रेलवे रो मध्ये तांकर चेंजेस करथिले ताप तो एग्रीकल्चर सेक्टर मध्ये चेंज करथिले ताको हमको हेडिंग देवा दरकार नै मु माइंड मैप तैयार करछि एजु माने इकोनॉमी केस रे से कोन चेंज करथिले सॉल्ट ये आनथिले ना नहीं सॉल्ट टैक्स ता तो जदि क्वेश्चन आसे जे सॉल्ट टैक्स ता केउ भाइसरॉय को समय आस्तला किसे ना तुम मनकर लॉर्ड कर्जन को समय आस्तला पूरा क्लियर सेठी सॉल्ट टैक्स जो कांसेप्ट मु कहितली 1 माउंट कहिले केते केजी बुझिबा ना 37 केजी बुझिबा आकु टिके साइड रे लिखि दलो सेमति रेलवे केस रे रेलवे कमिशन मध्ये ए समय आस्तला एग्रीकल्चर केस रे कोन से चेंज कले ताकु तुम मेंशन करि परिबो हो कि ना ये सुनो समस्त बुझा पड़ियो अच्छा आउ से समय रे आउ किछि स्टार्ट दे लिखिबो आंको समय रे अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमिशन केबे हितला 1902 मसिया ओके आउ कोन हितला पिले अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमिशन केबे आस्तला पिले 1902 मसिया आस्तला यूनिवर्सिटी कमिशन आउ कोन आसला ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट गोटे थला यूनिवर्सिटी कमिशन आउ गोटे थला यूनिवर्सिटी एक्ट केबे आस्तला 1904 ख्रीष्टाब्द रे यूनिवर्सिटी एक्ट मध्ये तुम मानकर आस्तला जोटा हमें डिस्कशन करले ताले मते को हम जो दीटा पेज देइथिली लॉर्ड कर्जन को विषय रे एती गोटे छोटिया इमेज भीतर से रही गलानी कि मते को जेतल तुम एई प्रोसेस रे जीवो तुमको सहज होबनी पढिया कि हो कि ना बुझा पड़ी गला टिके कष्ट हबो वर्तमान किंतु आफ्टर रिवीजन टाइम रे ये तुमको बहुत किसी सिखाई दबो जोटा कि तुमरो माइंड को सेति डेवलपमेंट करेबो ओके अच्छा तापर हमें कहा को पढ़िथिले पिले ना पर्टिकुलर 1905 मसिया विषय पढ़िथिले मते को पिले 1905 मसिया कोन हेतिला 1905 मसिया कोन हिची स्वदेशी मूवमेंट टिके साइड लिखिले कोन ना स्वदेशी मूवमेंट लिखिदला ओके आउ कोन सब कहि परिबे समय कोन हेतिला स्वदेशी मूवमेंट केबे स्टार्ट हेतिला पर्टिकुलर रो यार थिला डेट ना नहीं 7 अगस्त ना नहीं 7 अगस्त ओके स्वदेशी मूवमेंट हाँ अच्छा तो ए भी देखले जे कि आमे कहि थौ सक्सेसफुल मूवमेंट बिफोर के से ना गांधीयन एरा तुम जो गांधीयन एरा पूर्व ये गोटे सक्सेसफुल मूवमेंट थिला ओके अच्छा कोठारे मीटिंग ता हिथिला पिले कोथिला टाउन हॉल कलकत्ता रे कोठी थिला टाउन हॉल कलकत्ता रे ओके ए विषय मध्ये हमें डिस्कशन करि थिले अच्छा 1905 जेमती गला सेमती आसला केसे ना 1906 मसिया मते को पिले 1906 मसिया रे कोन होला 1906 मसिया कोन हेतला स्वराज हेतला किसे ना स्वराज SWARAJ एक्चुअली इटी कोन हेतला प्रॉब्लम इटी लिखो मॉड इटी कोन आसला ना प्रॉब्लम का मॉडरेट एमती क्रॉस मार देली एक्सट्रीम लिखली तातो माइंड रे आसीगला एउठु ही आरंभ होला मॉडरेट और एक्सट्रीम मध्ये रे टकरा टकरी ओके बुझा पड़ला समस्त को तो जेहेतु इटी मॉडरेट और एक्सट्रीम भितर प्रथम एठी फाटो सृष्टि हेतला ओके ता तो ए जो सेशन हेतला ए सेशन में प्रेसिडेंट के थिले ए सेशन रो प्रेसिडेंट के थिले दादा भाई नारोजी ओके दादा भाई नारोजी थिले प्रेसिडेंट ए समय रे जने स्लोगन देथिले सेल्फ स्वराज इज माय बर्थ राइट आई विल बी हैबिट हम के कहिथिले स्वराज देखो खाली लिखो स्वराज इज माय बर्थ राइट आउ एते लिखिया दरकार नै देथिल कि बाल गंगाधर तिलक कहिथिल बस शॉर्टकट रे टिके लिखि दलो आउ गुटे डायग्राम रे लिखि कोन करिवो त ए समय रे सेल्फ गवर्नमेंट जोटा कि आईएनसी रो गोल थिला हम कहि पिरा गोल ऑफ आईएनसी 1906 मसे रे आईएनसी रो गोल कोन थिला सेल्फ गवर्नमेंट रो गोल थिला ए आकर डायग्राम टा आकर लिखिलो तो ए जिंस तुमको एमिति करिबा द्वारा आउ गुटे जगह तुमको हेल्प करिवो से जगह हूँ जिते बड़े तुम आंसर राइट नहीं लिख से स्किल तुम डेभलप हो केमिति लेबलिंग करा जाए केमिति डायग्राम फॉर्मेशन करा जाए केमिति लेबलिंग करा जाए केमिति डायग्राम फॉर्मेशन करा जाए तार तो आम एबेठू ए प्रोसेस रे माइंड मैप रो नोट को सेल्फ बनैबा
ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏକ୍ଜାମର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ, ସୁରଟ ସେସନ। ସୁରଟ ସେସନ 1907 ସୁରଟ ସେସନ। ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଏ ସୁରଟ ସେସନଟାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଡିଭାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ମଡରେଟ୍। ଦେଖ ଏଇଠି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆଉ ମଡରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ମାନଙ୍କର ହେଡ୍ କିଏ ରହିଲେ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉମାନେ ଆସିଲେ? କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍। ମଡରେଟ୍ ହେଲେ କିଏ ସେ? ମଡରେଟ୍ ହେଡ୍ ହେଲେ କିଏ ସେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି? କେଉଁ ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1907 ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟପିକ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓରାଲି ଡିସ୍କସନ କଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି କେମିତି ସାଇମଲଟାନେସଲି ତୁମେ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ନୋଟ୍ ବନେଇବ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ନୋଟ୍ ବନେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି। ହୋମୱାର୍କ ମାନେ ଦେଖ, କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ର ଟପିକ ପଢେଇଥିଲି, କାଲିର ଟପିକ କ'ଣ ଥିଲା? କାଲିର ଟପିକ କ'ଣ ଥିଲା? ମେନ୍ ର ଟପିକ କାଲି ଯୋଉ ମେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଓଡିଶା କ'ଣ ଥିଲା? ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଓଡିଶା। ଓକେ, ଏଇଟା ମେନ୍ ର ଟପିକ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଭିଡିଓ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା 2023 ଡାଇରେକ୍ଟ ଓପିଏସସିରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଟପିକଟା କିଛି ବୁଲେଇ ବଙ୍କି ପଚାରିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ପିଲେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଆକାରରେ ନୋଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି? ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ୱେରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୋଟ୍ ଲେଖନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ପିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବି, ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୋଟ୍ ଲେଖିବା ସହିତ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନୋଟ୍ର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ତିଆରି କର। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପଟା ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟିଏ ପେଜ ଭିତରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ, ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନର ଓଡ଼ିଶାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାନି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ମିନିମମ୍ 30 ରୁ 40ଟା ୱାର୍ଡ ବା 40ଟା ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ, ସେ 300 ୱାର୍ଡରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଘୋଷିଲେ ହବ, କେବେ ଘୋଷିଲେ ତୁମେ ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବନି। ମେନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍, ଓନ୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ। ତୁମେ ବିଲିଭ କର ବା ନ କର, এটা হচ্ছে 100% সিওর। মাইন্ড ম্যাপ্রে আমি যে পয়েন্টକୁ পড়িଥାଉ সেই পয়েন্টକୁ ନେଇ তুমি ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରିବ। তুমি ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆକୁ ରଟା ମାରିକି ଯିବି, ଏ ଜନ୍ମ ତ 7 ଜନ୍ମ ବି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଲେଖିବା, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କାଲି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ 3rd ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? 2011ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ କେତେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପପୁଲେସନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି? PVTG ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲନରେବୁଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଲି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କରେଇଥିଲି ନା ନାହିଁ? ତମେ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷକୁ ଓକେ ହଁ, ତ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ, ନିଜକୁ ପଢିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନୋଟ୍ ବନେଇଥାଉ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ନା, ଆମେ ସବୁ କିଛି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସମୟଟା ଯୋଉ ଦବା ନା, ଏ ସମୟଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହବ, କେବେ ସିଲଭରରେ କନଭର୍ଟ ହବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି देखो हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश राइटिंग इन मेन। देखो इंग्लिश राइटिंग आड़ को मुंड को छाड़, आगे कॉन्सेप्चुअली वर्ड ऊपर ध्यान दियो, जे को टॉपिक अछि बा को पॉइंट अछि, से पॉइंट जितो तुम माइंड रे रहि जिवो, ऑटोमेटिक इंग्लिश रो राइटिंग स्किल डेवलप हो। मु तुम गोटे क्वेश्चन पचारुछि, बहुत सारा पिला एबे भी मते पचारंती जे सर हमें राइटिंग स्किल केमि करी। मु तुमको पचारुछि, सपोज सपोज ମୁଁ ଗଲି ନୟାଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସପୋଜ ମୁଁ କେବେ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇନି, ସପୋଜ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ।
ମୋ କତିରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା ନୟାଗଡ଼ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତା କତିରେ ସମସ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ତୁମର ରାମ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି, ତୁମର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୁଲିବା ଜାଗା କୋଉଠି ଅଛି। ମତେ କୁହ ସେ ଜାଗା ନୟାଗଡ଼ରେ କୋଉ ପିଲାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲସେ ବୁଲି ପାରିବ। ମୁଁ ନା ସେ ଏ ବୋଲି ପିଲାଟା, କିଏ ସେ ବୁଲି ପାରିବ? ଏ ବୋଲି ପିଲାଟା ବୁଲି ପାରିବ, କାରଣ ତା କତିରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତା କତିରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଲେଖିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଟପିକକୁ ନେଇକରି ଆମ କତିରେ ଡାଟା ଥିବ। ଆଉ ଡାଟାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟରେ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଆଉ କେବେ ବି ମତେ ପଚାରିବନି ଯେ ସାର୍ ନୋଟ୍ କେମିତି କରିବୁ, ନୋଟ୍ କେମିତି କରିବୁ, ନୋଟ୍ କେମିତି କରିବୁ, ନୋଟ୍ କେମିତି କରିବୁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସାରିଲି, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଗଲି, ମୋର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସାରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମିନିମମ୍ 25ଟା କଲ୍ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ କେମିତି ନୋଟ୍ ବନେଇବି? ମୁଁ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ନୋଟ୍ ବନେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଲ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରି ଦିଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖି ଦେଖ ସେ ଜିନିଷ ପର ଷ୍ଟେପ୍, সেটা ଏବେ ଭାବନି। ଏବେ ତମକୁ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଦେଲି ସେଟା ଦେଖ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଓରି ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କର। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଏବେ ବି ପଚାରୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଯେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇକି, ଯେ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ କେମିତି ବନେଇବୁ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୋଟ୍ ବନାଉନି, तुमको जो मंथ वाइज जो पीडीएफ दौर से पीडीएफ को तुम्हें पार जब प्रिंट काढ़ीदब। मुझे भाई पठे बोली किंतु मे भी पठे न पारे कहीं टाइम मत हो पार कहीं जहाँ को मुझे से टाइम भी बाहर कर पार्नी जदि हम आ 5-6 दिन पर तुम्हें यदि प्रिंट कर दौच से पॉइंट को तुम पढ़ी दौच एनफ। करेन्ट अफेयर नोट केवे करनी आज तुम मैंने कौच। ओके, अच्छा आम ओपीएससी को देख ये तुम गत वर्ष एग्जाम दे तुम फिल कर 1 ईयर पूर्व क्वेश्चन भी आसूँ कौ क्वेश्चन 1 ईयर पूर्व आसे जो गुटाक किसी इंपोर्टाट था। तो आम दुईटा जिन फॉलो करवा मु तुम मानक 1 ईयर गोटे करेन्ट अफेयर पढ़ाऊँ जोटा कि स्टेट न्यूज सरी बर्तमान चलती कौन स्पोर्ट्स चलती तुम ईयर वाइज कभरअप कल ईयर वाइज कभरअप कल ता सहित कौन कर ना मंथ वाइज जहाँ को आम नवेम्बर पर्यटन पढ़ीचे आम डिसेम्बर स्टार्ट करने मंथ वाइज जी भी पढ़े जहाँ भी सब रही जाइए तुम कभरअप कर मंथ वाइज टा तुमको बहुत फाउंडेशन दिए किंतु ईयर वाइज रे तुमको ट्रिक शिखेब ये जिन इंपोर्टाट रोचे गोटे पढ़दे कि मंथ वाइज टा भेरी इंपोर्टाट तुम कौन जुआर गोटे पढ़ू के तुमको दुईटा को टाइम देवा पड़ो। बुझा पड़ा? हाँ प्रिलिम ये नोट को जीव नोट सफिशिएंट। मैथ और डीआईपी प्रोब्लेम जब खाली केवल प्रैक्टिस ही तार सॉल्यूशन आउ किछि भी नहीं ओनली प्रैक्टिस। आउ क्या डाउट अच्छी पचार दिया परवर्त अवस्था मुझे शुणा चाहूनी ये जिन डाउट अच्छी माइंड बोली। हाँ एबे आउ किसी पिला डाउट था सर नोट सब कौट रोचे मुझे पाऊनु आम सब पाऊनु देख सेटा मुझे तुम देखा देख जो मैंने ब्याच जॉइन कर ओके जो 2999 हो 3999 हो एका दी जन फाइल एका तुम्हें ओपन कर कंटेंट को जीव कंटेंट को गला पर तुम्हें जीव कौटी की ना करेन्ट अफेयर सेक्शन करेन्ट अफेयर सेक्शन गले मंथली पाइगल ये हूँ इयरली करेन्ट अफेयर अच्छे तो ये तुमको करेन्ट अफेयर मिलगला। एबे पड़े आस प्रिलिम फाइल को GS1 रे गले तुमको कौन मिलला ना बे हिस्ट्री क्लास जो चलती ओडिशा जीके जो चलती ये प्रिलिम पाइगल। तबे मेन फाइल को जीव मैंने GS2 हूँ कौन मैथ मैथ रीजनिंग डीआई GS2 रे पाइगल से भाई तुम्हें मेन फाइल को गले एबे हमर GS1 काली मुझे पढ़े देख तो 8 काली पढ़े थे ट्राइबल पॉपुलेशन इन ओडिशा एटा देछि तो 8 पाइगल तो तुम्हें आराम से यही फॉर्मेट रे जाई परिबो। पूरा क्लियर हलो? ओके थैंक यू। ओडिशा हिस्ट्री काली क्लास अच्छे आउ गोटे जिन मन रख होम साइंस काल स्टार्ट हो
होम साइंस किस दिन ऑफ थिला कालठू होम साइंस स्टार्ट हो ओके थैंक यू नेक्स्ट क्लास काली सकाळ 6टाରେ ଆମର କାଲି ପୁରା ଯେମିତି ଥିଲା 4ଟା କ୍ଲାସ୍ ସେଇଭଳି ରହିବ ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ନଥିଲି ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେମିତି ରହିବା ସେମିତି ରହିବ କିନ୍ତୁ କାଲି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ